أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ تبارک و تعالیٰ ہس کن شکر و احسان یم رب ذوالجلالن اسہ بھی اکہ ساتنس یت مستعار زندگی مز پنس پاک گرس مز قال اللہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزنک تو بوزنان توفیق عنایت کور. بی ٲسِن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تہندس آلس تامت. مے کر تہ برونٛٹھ کَنۍ سورۃ البقرہ کی 36ویں رکوچ آخری آیت تلاوت. اور یت کٲٹھۍ زن تُہۍ زانان چھُو کہ یتھ رکوعس منٛز چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن مسلمان بندن انفاق فی سبیل اللہ ترغیب دِژمٕژ اور مختلف مثالو ذریعہ یُس زن مخلص مسلمان خرچ کرن تٔمۍ سٕنٛز مثال تہِ آیہِ اور یم ریاکٲری کرن چھِ تہنٛز مثال تہِ کٔر اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یتھ رکوعس منٛز بیان. آخری آیت یس میں تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ وٕنکیٚنس تلاوت کٔر اتھ منٛز تہِ چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ اکھ بہتریٖن مثال بیان کران تِمن لُکن ہٕنٛز یم لُکھ اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛزِ وتہِ منٛز خرچ کران چھِ مگر دلس منٛز چھُکھ ریا آسان. یعنی خرچ چھِ کران مگر لوگوں کے دکھاوے کے لیے یا واہ واہی حاصل کرنے کے لیے. تِمن لُکن ہٕنٛز چھِ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن یتھ آیے مبارکہس منٛز مثال بیان کٔرمٕژ. اللہ تبارک و تعالیٰ چھِ ارشاد فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایود احدکم کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا ان تکون لہ جنہ کہ اس کے پاس ایک باغ ہو من نخیل و اعناب اور اس باغ میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کے درخت بھی ہوں. یعنی عربس مز اوس یوان ماننہ سہ باغ ساروی کھۄتہٕ بہترین باغ یتھ باغس مز کھجور کے درخت مز باغ آسن اور تمیک پھنس یُس زن سہ آسے کمیک انگورک دچھک. بہرحال اسی کی مثال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل و اعناب کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک بہترین باغ ہو جس میں کھجور کے درخت بھی ہوں اور انگور کے درخت بھی ہوں. تجری من تحتها الانہار اور اس کے نیچے سے ایک نہر بہتی ہو. یعنی نور علی نور. پہلے انگور کے یہ کھجور کے درخت بیچ میں بہرحال ان پھنس کرنے خاطر انگور کے درخت اور اس باغ میں سے ایک نہر بھی بہتی ہو. لہو فیہا من کل ثمرات. اتنا ہی نہیں لہو فیہا من کل ثمرات اور اس باغ میں ہر طرح کے میوے اور ہر طرح کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ اور اس کا مالک جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو. یعنی یہ مثال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان تمن لکن ہز یم لوگ ریاکاری کران چھ پنس انفاقس مز. تہذ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرن کہ کیا آپ میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایک شاندار باغ ہو, اس باغ میں کھجور کے درخت ہوں اور اس میں بالکل سایہ کرنے کے لیے انگور کے درخت بھی ہوں اور اس میں سے بیچ میں ایک نہر بھی بہتی ہو اور اس میں ہر قسم کے پھل لگتے ہوں. یعنی یہ کہ زمین یہ پہ کرتے ہیں مگر اچھن پھل لگن مگر اللہ تعالیٰ فرمان کہ اس میں کثرت کے ساتھ اور ہر قسم کے پھل ہوں. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ
मगर इसका जो मालिक है वो अब बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है, यानी इसमें बड़ोमुद वलहु दुर्रियतुन ज़ुअफ़ा, और उसके जो औलाद हैं या इसकी जो जुर्रियत है वो इंतहाई नाफहम और इंतहाई लाकड़ बाज, यानी अमसन औलाद खुद तो ये बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुका है मगर इसकी औलाद जो है ये इंतहाई मासूम और इंतहाई नाफहम है, यानी ये अब इसकी मदद या यम हकन अमिस अत सपोर्ट कर बागबानी हंदिस काम मज कह। अल्लाह ताला फरमान फअसाबहा इअसारुन फीहि नारुन फहतरकत, बस ऐसे इस सूरत हाल में फअसाबहा इअसारुन फीहि नारुन फहतरकत, बस अचानक एक आग का गोला आ गया और इस आग के गोले ने इस बाग को बिल्कुल मिलियामेट कर दिया। यानी तह करवा पसंद कि तह मज आंसि बाग पता आंसि बेहतरीन बाग युस जन जिक्र आव करने और अचानक इस पर एक आग का गोला पड़ जाए और ये इस आग के गोले की वजह से ये बाग बिल्कुल सफाचट हो जाए। और ये अल्लाह ताला फरमान कि इसका जो मालिक है ये बुढ़ापे को पहुंच चुका है, यानी अब ये दोबारा इस माल या इस बाग को दोबारा आबाद नहीं कर सकता है। वह कर औलाद मदद, वह करे अम्स जुरियत अत मदद ही नो बाग बनानस मज, मगर वो इंतहाई ज़ुअफ़ा, वो इंतहाई कमजोरी की हालत में और इंतहाई नाफहम और इंतहाई लकटी उम्री हिंज वो इसकी मदद। तो जब ये आग का गोला इस बाग पर आ पहुंचा तो इसकी वजह से ये बिल्कुल सफा चट हो गया, अब दोबारा से इसको बनाने की भी सूरत हाल नहीं है। अल्लाह ताला कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, बस ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी आयात और अपनी निशानियां आपके सामने वाज़ह करके खोलता है। यानी मिसाल दी गई है किनकी? रियाकारों की। बज़ाहिर उनने अपने माल को खर्च किया तो मुझे बासनी बेहतरीन बाग और तैयार के खतर आखिरत के लिए हमने एक बेहतरीन बाग लगाया और आखिरत में शायद हमें यह काम आएगा, यह हमारा इन्फाक, मगर हम क्या इस कारण ये रिया भी करते थे और रिया के साथ साथ लोगों को फिर इन्फाक के बाद या सदका करने के बाद लोगों को तरह तरह से सताते थे, तुमने तान दिवन, तुम्हें पे मिन्नत थावन। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है देखने में तो ये बहुत अच्छा बाग लगता है कि उम बनो बेहतरीन बाग के खतर आखिरत खतर और तवक्का छ कि बुजरस मज इत इंसानस तवक्का आसन कि वल जवानी मज बनो मे बाग, अत कर मे वह यीचा मेहनत, वह यी बुजरस मज मे यह बकार, मगर अल्लाह ताला फरमान कि ये बुजरस वोत अत पे नार गोल पे। यही मिसाल इनकी होगी कहां पर? कयामत में उन लोगों की जो रिया करते हैं या जो लोगों को दिखावे के लिए या लोगों को ईजा पहुंचाने के लिए सदका करते हैं। तो मन पानी जे गुमान कि वाल अस्कोर जिंदगानी मुझ बाग तैयार, हमने खर्च किया, अब आखिरत में ये हमारे काम आएगा। अल्लाह ताला फरमान ना, ताकि ये साथ तोत वातन इनके बाग पर ऐसे ही आग का गोला पड़ा होगा जैसे ये मिसाल हमने बयान, यानी तत तुमन बिल्कुल इत पे डोट पेवन सफा चट निवन कर इथे पे तिहंदन एमालन तत डोट पेमुत, वहां उनको कुछ भी नजर नहीं आएगा, तत कहन। बहरहाल अल्लाह ताला दिस मिसाल कि इसका जो मालिक है वो बूढ़ा है, यानी वह हेक नो बाग लगित करहस का मदद बच्चे तुम तिश लकट। तो यही मिसाल इनकी भी होगी। अब ये वहां पर चाहेंगे कि हम थोड़ा इन्फाक करें, इस तरह में भी क्या खर्च, मगर वहां तो अब बूढ़ा हो चुका होगा, अब वहां पर अमल का कोई बिल्कुल अमल का दरवाजा बंद होगा। इस पर रसूलुल्लाह फरमो कि दुनिया यह आखिरत की खेती है, यानी खेती आपको कहाँ करनी है? दुनिया में, मगर इसका फसल आपको कहाँ पर ये काटना है? वो फसल आप आखिरत में काटेंगे। अब वहां तो बोने की सलाहियत या बोने का मौका ही नहीं है। बहरहाल एम पे आय थोमुत यह कर, मगर जब वहां पहुंचेगा तथा सरसी डोट प्योमुत, तो इसको इस बूढ़े आदमी की सी हालत हो जाएगी तत हे भी कमाउन, मगर अब कमाने की कोई भी फुर्सत या कमाने का कोई भी वक्त नहीं है। कहा यह बकार ना दपन इत पे बचीन बकार कहें तक बिल्कुल लक। यही हालत कयामत में भी होगी कि यह करे और योर अथ मारे कि कह में बकार पन यार दोस्त। अल्लाह ताला फरमान नहीं, बिल्कुल इस बूढ़े इंसान की इसकी हालत हो जाएगी कि खुद भी ना कमा सकेगा ना कोई दूसरा इसको वहां पर काम आएगा। अल्लाह ताला फरमान कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला अपनी इन वाज़ेह निशानियों को खोलकर बयान करता है। क्या खोलकर बयान करता है? वरना अगर अल्लाह चाहता, अल्लाह तबारक व तआला है कि कुरान में युत वनित ए मोमिनो अल्लाह ताला से वत करियो खर्च, मगर रिया निश भी अत क्या लुकन तकलीफ दिन निश बचो, इतना भी काफी था। और हुक्म के तौर पर भी अल्लाह कह सकते थे कि ए लोगो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, और खर्च करने के साथ साथ न तो लोगों पर मिन्नत रखो और न तो लोगों को तकलीफ पहुंचाओ। मगर अल्लाह तबारक व तआला दपन मे दितु तुह
कूलियत पानी वाज़ेह निशानी बयान। मैंने आपको मिसालों के जरिए समझाया कि जो इन्फाक करता है उसको कैसे 700 गुना अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाकर देता है। और मैंने आपको मिसालों के जरिए समझाया कि जो रिया से अपने आप को पाक साफ रखता है उसकी मिसाल उस बाग वाले की सी है जो किसी ऊंचाई पर हो, जिस पर बारिश हो और उस बारिश से उसका उस मी से या उस बारिश से वहां दुगना उसका फसल हो जाए। ये दिस अल्लाह तबारक व तआला मिसाल कमन हिज जो रिया से अपने आप को पाक रखते हैं। मगर हुमन हिज मिसाल कर अल्लाह तबारक व तआला बयान कि यम लोग अल्लाह तबारक व तआला से बात में बज़ाहिर माल खर्च करन मगर उसमें रिया होता है, उसमें लोगों के का तकलीफ का उनसर होता है, लोगों की तकलीफ जो उनकी मिसालें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की कि उनकी मिसाल उस पत्थर की जैसे है जिस पर वो मिट्टी की तह जम गई, जोरदार बारिश आ गई, वो मिट्टी की तह बिल्कुल बह गई। यह अमाल कयामत दह नामो अमाल बिल्कुल इथे पे आमद छालने। और आज की मिसाल भी अल्लाह ने बयान की कि अमिस पानी जो गुमान कि मे कोर जवानी मज बाग तैयार वह कर बुजरस मज आराम। मगर यह मिसाल आज तमिस शख्स यम रिया सान कोर्मुत सदक़ उसको ये यकीन होगा या उसको ये पता होगा शायद कयामत दह में ये बकार, क्योंकि वहां तो कमाई नहीं है। मगर अल्लाह ताला फरमान जैसे इसके इस बाग पर आग का गोला पड़ गया और उसका तमाम बाग ये मिलिया मेट हो गया, इथे पे यह अमाल तो बिल्कुल कयामत दह क्या गसन मिलिया मेट, इनको कोई फायदा वहां पर नहीं पहुंचेगा। और याद गो इन आयात से अल्लाह ताला फरमान युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयत, मैंने इन आयात को वाज़ेह कर दिया ताकि तह तर फिक्र कि हकीकत में असल में इन्फाक कैसे करना है। और ये वन मे गस दरसस मज कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की कि 3 किस्म के शख्सन वुश्न अल्लाह तबारक व तआला कयामत दह रहमत के नजर से और न तो उनके साथ बात करेगा। उनमें एक आदमी कौन है जो इन्फाक करता होगा, जो सदका करता होगा मगर सदका क्या ऐसे रिया। तो उलमा ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसके साथ कयामत के दिन न तो बात करे और न तो रहमत की तरफ उनकी तरफ देखे तो ये किसी कबीरा गुनाह की वजह से होगा। आम गुनाह पर यूज बड़ सजा। तो इससे पता चला ये रियाकारी जो है ये असल में सवाब के बदले इसके लिए वबाल बनेगा, क्योंकि ये बने कबीरा गुनाह। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो मेरी उम्मत पर जिस बात का मुझे सबसे ज्यादा डर है वो शिर्क असगर है, यानी रियाकारी, लोगों के लिए काम या लोगों के लिए अमाल करना। अल्लाह ताला फरमान कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयत लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि आप गौर करो, ताकि करो तदब्बुर तो तफक्कुर कि हमें अल्लाह के यहाँ किन अमाल क्या वजन होगा और किन अमाल का उस वक्त हवा मंसूरा यानी बिल्कुल उस ये राख की ढेर की तरह वो उड़ा दिए जाएंगे जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए काम नहीं होगा। बहरहाल रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि सुदीन ऐसे यमन आयातन पर अमल करने तौफीक और यम दरस और यम सबक अत आयातन मुझ तमन आयातन पे दीन ऐसे तमन सबकन पे सबक या क्या अमल करना बिलखुसूस। अब रमजान का महीना आने वाला है, रमजान के महीने में हम ज्यादातर अल्लाह के रास्ते में सदका खैरात करते हैं, मगर अच्छ तेल शूब ये यम सदका खैरात करन महज लिवजिल्लाह अल्लाह की रजा के लिए, वरना अगर दिखावा हो, वरना अगर क्या सिर्फ रियाकारी हो, नामो नमूद हो, तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने खोल कर वो मिसालें भी बयान की है कि इन लोगों का हश्र कयामत के दिन क्या होगा। रब्बुल आलमीन मगो दुआ कि सकरीन इखलास से दौलत अता व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।